Hello, everyone, and welcome to the 90s podcast. Today, we are joined by someone whose journey started in the 90s with the show Tara and has worked across films, television, OTT, and theatre. From memorable roles across decades to her much loved Bua in Half Loved, Half Arranged, she truly made us all want a Bua like her. Please welcome Grusha Kapoor. Well, Thank you so hi, ma'am. How are you much. Beautiful doing? introduction. I'm good. You tell me. I'm doing good too, ma'am. It's pleasure to have you on the show. And I was reading about you and found out that you come from such a strong background, creative background. Your father, Ranjit Kapoor, is a well-known filmmaker, writer, and your uncle, Chacha, Anu Kapoor, is famous TV presenter and actor. I usually ask people how they got into acting, but for you, I'm curious, was it easy choosing this field, or did that legacy actually made it more challenging for you? What are the earliest memories, growing up in the kind of artistic environment? आपको क्या memories हैं जब बचपन में आप अपने Memories, you, though, I have wonderful memories because I used to go for my father's rehearsals. So I used to see these wonderful actors, bade actors, rehearse and practice. तो एक impression जरूर था, but I never wanted to be an actor. I'm an accidental actor. मुझे तो really? छुट्टियों में मैं काम करने आई थी तारा में because they thought कि I'm Ranjit ji's daughter and I was part of TIE, Theatre and Education Company, which is Yeah, the wing of National School of Drama. yeah, So I'm a diploma holder from that TIE. So that time they were casting for Tara's daughter. They were looking for somebody yeah. for Tara's daughter. So Raja Bundela ji just happened to recommend my name and he said ki age bhi choti hai Baggu ki because he's my father's very good friend, such a close friend. And he had come to Delhi and he knew I'm Ranjit ji's daughter, of course. So he knew Oh, sweet. I'm from theatre. So he just happened to recommend my name and Ramanji and Bebuji Yeah. Vintananda. They uh, they just called me one day. Ramanji called me one day and he said, "Beta, आप बॉम्बे आ सकते हो?" So I thought की छुट्टियां छुट्टियां चल रही थी स्कूल की. जी, I जी, जी. thought, मैं आती हूँ और मुझे लगा एक हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा and we'll be back. Yeah, So I never knew that that's going to be such a life-changing event for me. And yeah. then everything just changed. That show became a super duper hit, and then since '94 I've been working regularly. Then I could never go back. बट मैम कभी प्रेशर था क्योंकि आपके फादर और आपके चाचा अनु कपूर वर ऑलरेडी इन द फील्ड एंड दे वर No, सो कोई pressure फेमस नहीं था because my father never stayed in Bombay. He used to write the या movies and go back to Delhi. He has always loved या Delhi a lot because of his theatre background, because of his या theatre atmosphere and his या friends and everything. So या वो बॉम्बे आते थे, फिल्में लिखते थे और वापस दिल्ली आ जाते थे because हम लोग सब दिल्ली में ही रहते थे. But जी once I started working in Tara, then my dad was also like, he was also writing a lot of movies. Then he said, what's the point of going back to Delhi when my family is here? जी So जी all of us, like in '94 itself, all of us shifted here. So ओह there was no ओके pressure. I did not even want to become an actor. I was just thrown into the swimming pool and then asked to learn how to swim. So I jumped. मैं आईएमडीबी देख रही थी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बेस माय दिस एंटायर कन्वर्सेशन ऑन आईएमडीबी आपके डैड ने कभी हाँ कभी ना हाँ जी, लिखी मेरे है डैड की पहली पिक्चर थी जाने भी दो यारो, फिर एक रुका हुआ वाह फेस्ट, या हाँ कभी ना, बैंडिट क्वीन, लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह, लज्जा, देन मोहन जोशी हाजिर हूँ, देन वाह तेरे मेरे सपने तेरे मेरे सपने, कभी हाँ आई कभी ना, लव दैट मूवी या कभी हाँ खाकी कभी ना, खाकी, देन या he's आई written लव lots of films. आप जब ये कहते हो कि आपका एक्सीडेंटल था ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्योंकि आई एम श्योर व्हेन यू वर स्टडीइंग कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एविडेंट होता होगा कि आपके फ्रेंड्स आपको कहते होंगे ऑफ कोर्स योर फादर ही No, राइट्स see, सो no, यू have to, डेफिनेटली विल see, first of all, आज से 30 years back, things were very different. ओके बच्चे तब उनको I was not working or anything. I was in class 10th. या So and I did not want to become an actor. I wanted to complete my law. Acting का तो दूर दूर तक कहीं कुछ था ही नहीं apart from ओ my summer workshops जिसमें
NSD की और साहित्य कला परिषद की समर वर्कशॉप्स होती थी जिसमें जी बच्चे जी पार्टिसिपेट करते थे और 2 महीने बाद प्रोडक्शन होता था, प्ले होता था. जी अपार्ट जी फ्रॉम जी दैट जी आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन एनीथिंग. So this came out of the blue, and then I did not know this is going to be so life changing, you know. या So ऐसा कभी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या इस फील्ड में जाना है. आई वाज टू यंग टू इवन थिंक अबाउट इट. गॉड डिड नॉट इवन गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट इट. और एक रुका हुआ फैसला जो के फादर ने लिखा है, वो एक आई थिंक मूवी के साथ साथ एक प्ले भी है, मेरे भी है। फादर ने ही किया था. अच्छा। देन सो मेनी बॉम्बे में भी उसका शोज हुए थे. देन जी। यश चोपड़ा saw it and या he wanted to make a film on it with my father as being ओ actor. But that time यश जी की मशाल flop हो गई थी. So he अच्छा। was a little insecure in making such a different subject. So या उन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया और इस बीच I think I was sick or something and my father desperately needed money. So Basu Chatterjee wanted to make a film on the same subject. So सेम my सब्जेक्ट। father sold his script to Basu Chatterjee, but he made sure कि बासुदा सारे एक्टर्स वही लेंगे जो प्ले में ओरिजिनल एक्टर्स थे. And Basu स्वीट। complied, and then that's how Ek Ruka Hua Faisla was made. Otherwise, it would have been made by Yash Chopra and directed by my father. I recently spoke with Vinita ma'am on the podcast, and she shared that how she came up with the idea. But I do love to hear when you were being told that you're going to be part of the show. Were you skeptical कि ये चीज बहुत प्रोग्रेसिव है या अभी के हिसाब से ऑडियंस के हिसाब से प्रोग्रेसिव है? Should I नहीं do नहीं नहीं, this or not? तब की ऑडियंस बहुत प्रोग्रेसिव थी. तब तो ऐसे ही शोज बनते थे. इसलिए कोई ऐसा ये नहीं था कि अरे हम बहुत प्रोग्रेसिव शो बना रहे. नो नो नो. All the Yeah, all the content you saw on television was way ahead of its time. There were so many shows with modern, independent thinking women, you know. तो ऐसा yeah, कोई सवाल नहीं है कि that time we were doing something which was out of the box या फिर yeah, you know revolutionary. Now I yeah. can say it was a revolutionary time. For sure, for sure. I think Yeah, it's relevant today. It's absolutely. still relevant अब today. you don't see the real characters anymore. You just see Yeah. good or bad. ग्रे वाले एक्चुअल जो लोग होते हैं वो तो आपको Yeah. देखने को ही नहीं मिलते हैं. तो इट वाज डेफिनेटली अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड पीपल लव्ड इट. एंड आई डोंट नो अब ऐसा शो बन भी सकता है कि नहीं. आई रियली डाउट. तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? लाइक डू यू रिमेम्बर? Phenomenal response it was. And Like, did people start recognizing you after that? What yeah, kind of, yeah, yeah. yeah, There were two, matlab, the character became too popular. yeah. Very popular. बहुत प्यार करते थे लोग. They used to actually hate me. I used to get mails कि आप तारा से Oh, क्यों करती हो ये. और तब तो ये जमाना था yeah. नहीं सोशल मीडिया और ये जी सब. जी तो जी लोग जी चिट्ठी भेजते थे. तो मुझे इतनी इतनी चिट्ठियां आती थी हर महीने. हाँ, तो फैन मेल्स होती थी उसमें. मैं मतलब उसमें तारीफें भी होती थी. उसमें ये भी होता था अरे हम आपसे नफरत yeah. करते हैं, आप तंग करती हो और ब्रैट हो ये हो. बट पीपल न्यू एक्टिंग है. बट एक्टिंग उनको इतनी अच्छी लगती थी दैट दे यूज्ड टू हेट द कैरेक्टर. बट आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर देवयानी's कैरेक्टर. Was was that point of time when you realized this is something you wanted to do? नो यार, दैट टाइम आल्सो नहीं। लाइक खत्म होगा तो आई go back and pursue my studies and try to become a lawyer because I always wanted to be a lawyer. But I could not because मुझे टाइम ही नहीं मिला. ईश्वर ने जी। बिजी कर दिया कि एक के Back to बाद back. हाँ बैक टू बैक शोज होते रहे. Then you were also part of Kehta Hai Dil on Star Plus. I remember watching that with my mother. I used to Hmm. love that show. That comic vamp character was Yeah. quite unique. Being mean yet funny is Yeah. quite unique combination. And that was Was my input because उस जमाने में बहुत के ड्रामा की वैम्प्स बहुत होते थे। चारों तरफ थी. with जी big bindis, with loud makeup and all जी that. जी The loud वो सब कुछ. And I was like कि मुझे अगर कुछ करना अगर ये वाला कैरेक्टर करना है तो how can I make it different. I was not comfortable only wearing lots of jewelry and makeup and yeah all stuff like that. So I was yeah like कि अब मेयर साहब का जो कैरेक्टर था उसमें मनोज जोशी जी ने जो प्ले किया तो वो थोड़ा जी सा जी एसेंट्रिक था. तो ऐसे एक एसेंट्रिक आदमी की बीवी एसेंट्रिक ही होनी चाहिए.
Mm. So I somehow felt कि I'll make it a comic web, and जी, people loved it डेफिनेटली क्योंकि कॉमिक वैम्प्स का तब कोई और रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था, नहीं था। या तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और मुझे फिर जी। करने में भी मजा आने लगा। वरना शुरू शुरू में एक दो दिन जब मैं अपना सुर ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या सुर पकड़ूं। So, when you do something unique like that, do you find it challenging at times कि अगर मैं करूं और ये चीज वर्कआउट नहीं करे, उस टाइम पे what were you thinking when नो, you आई you न्यू know? इट विल वर्क, आई न्यू। Yeah. क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, हमें ऐसा लगता है जी। हमारी ऑडियंस ना समझ है, बल्कि उल्टा है। हमारी ऑडियंस को स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, उनको आप अच्छी कोई जी, चीज करके दीजिए, दे आर मोर इवॉल्व्ड देन ऑल ऑफ अस। जी, 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 If they like something, if they find something interesting, they definitely like it. जी, और जी। वो मेरे कैरेक्टर करने के बाद वो सीरियल भी तीन तीन चार साल चला। सो इट वाज सच अ ह्यूज Yeah, हिट, या मेरे साहब। सो I believe that we should stop taking our audiences for granted. They are much yeah, more mature than us, and they have a different level of understanding. It's not that हम लोग जो इस फील्ड से जुड़े हम ही कहते हैं अरे कॉमिक वैम्प तो मैं ही समझ पाई या मैं ही समझ पाया। नो, द ऑडियंस वाज स्मार्ट इनफ and so intelligent enough to understand it. I'll jump to something that I'm really excited about. I want to jump to Half Love, Half Arranged, which is which I absolutely love. वो जो बुआ का कैरेक्टर था ना, उसको देख के it's so relatable, witty, supportive, strong. And congratulations, ma'am, on winning Best Actor Comedy Female at Indian Telly Awards. Truly deserve it. When you play such relatable character, does it come naturally या आप उसके लिए या challenging होता है ये जब आप बहुत नहीं, relatable चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज पहली बात तो ये कि व्हेन द डायरेक्टर मेट मी दे वांटेड टू कास्ट मी फॉर द मदर्स कैरेक्टर, बट आई डोंट Okay. समथिंग इन मी ही फाउंड, ही सेड मैम मदर नहीं, आप बुआ का कैरेक्टर करो। बुआ का जी, कैरेक्टर इज जी, आल्सो इक्वली स्ट्रांग एंड मोर फनी, जी, and it has layers. So I said definitely, and then my director was so supportive कि मैंने जैसा इंटरप्रेट किया उस कैरेक्टर को, जी। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आप करिए, इसी को कंटिन्यू करिए। तो आपका डायरेक्टर को जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आपको भी करने में कॉन्फिडेंस आता है। सो आई प्लेड दैट कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज जो उसमें मदर का कैरेक्टर है विच इज प्लेड बाय सुप्रिया दीदी, तो वो बहुत हाइपर कैरेक्टर है। सो दिस कैरेक्टर could not be hyper. You can't have two hypers, that becomes very messy and वो शोर हो जाता है। तो एक कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन होना होता है, तो व्हाट आई डिड, मैं स्लो डाउन होके कॉमेडी की मैंने, तो वो शायद लोगों को बहुत अच्छी लगी कि ये जी, जी, बिल्कुल जी। ही रजौरी की रजनी। हाँ, तो वो लोगों को शायद, मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगा। ये दहेज तो लेना ही नहीं है। वाह, क्या विचार है। वैसे शादी के बाद ये कौन सी गाड़ी चलाएंगे और वो आएगी कहाँ से? ये बेटा हेलीकॉप्टर से आएगी, रख समझा। और तू अभी बस से निकल, चल। बेटा जरा खड़ी होके दिखाना। कोई नहीं, खड़े हो। बेटा ये कप उठा के दिखाना प्लीज, थोड़ा घूम के दिखाना, बेटा बैठ के दिखाना। बहुत अच्छी है। अब आप जरा खड़ी होके दिखाना। मैंने तो दोनों सीजन देखे हैं। मैंने मॉम एंड डैड को भी बिठा के दिखाया जस्ट बिकॉज आई वाज सो हैप्पी टू वॉच दैट सीरीज। आई वाज लाइक नो, आप लोग भी देखो बैठ के। तो मैं रील की बात कर रही थी, उसके अंदर जहाँ पे वो उसके रिश्ते आ रहे होते हैं और वो हर बार एक रिश्ता आ रहा है और फिर कुछ ना कुछ बोल के निकल के जा रहा है and वो फिर बुआ इंसल्ट करके उनको निकाल रही या है यू बिकॉज नो वो कहीं ना कहीं वो फेमिनिस्ट है। शी इज फनी, शी इज विटी, सब कुछ, बट शी इज अ फेमिनिस्ट कि अपने ऐसे नहीं किसी को बिहेव करने दूंगी मैं मेरी भतीजी के साथ में, शादी करनी करो नहीं तो चलो बात, तो बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है उस कैरेक्टर का, कि ये नहीं है कि वो मतलब गलत सलत इंग्लिश बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बर्दाश्त कर लेगी। जब हाँ। हाँ, शी विल स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। Ma'am, do you think mini-series and OTT shows are bringing more relevance than Indian TV shows? सिनेमा जो जाकर फिल्म देखते हैं वो एक अलग ऑडियंस है, जो ओटीटी देखते हैं हम और आप जैसे लोग वो एक अलग ऑडियंस है, जो टीवी देखते हैं वो एक अलग ऑडियंस है। उसका जी, रीजन ये भी है कि सोशो पॉलिटिकल चीजें और सोशो इकोनॉमिकल जो चेंज हमारे यहाँ हुआ है,
पहले टीवी एक आध घर में होता था और बहुत ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के घर में होता था, तो कंटेंट भी अगर आप देखें तो तब का बहुत ओ हेनरी से इंस्पायर्ड, या गालिब के ऊपर शो आना, या फिर कितने चेखव के ऊपर शो आना। मेरे फादर ने ही बनाया था चेखव, एंटन चेखव की कहानियां, क्योंकि तब जो टीवीज होते थे वो ज्यादातर बहुत वेल टू डू लोगों के यहाँ होते थे, और ज्यादातर लिटरेचर बैकग्राउंड वाले लोग, पढ़े लिखे लोगों के घर में होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे इकोनॉमिकल चेंजेस आए, टीवी हर घर पहुंचने लगा धीरे धीरे, तो फिर आप देखिए प्रोग्राम्स फिर चेंज होने लगे, शोज चेंज होने लगे, क्योंकि ऑडियंस चेंज होती गई। और अब हर घर में टीवी है, लेकिन आप और मैं, मुझे नहीं याद आता हमने टीवी कब देखा था, क्योंकि हम टीवी की ऑडियंस नहीं है। अब टीवी की ऑडियंस जो है आपकी 2 टियर 3 टियर उस तरह की है, हमारे हाउस हेल्प्स टीवी की ऑडियंस है, यू अंडरस्टैंड। तो इस वजह से उनको केटर करने के लिए उनकी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से अब टीवी बनता है। तो इट्स नॉट दैट टीवी हैज चेंज, the audience has changed. TV has entered into इनफैक्ट अब ज्यादातर आपको जो ज्यादा लिटरेचर इंक्लाइंड लोग हैं उनके यहाँ टीवी नहीं मिलेगा। अब आप टीवी हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है। मैं मानती हूँ कि ऑडियंस अलग अलग है, हर चीज की, टेलीविजन की ऑडियंस अलग है, ओटीटी की ऑडियंस अलग है, ये है। बट यू थिंक can we bring back that magic? Can we make some shows like the 90s that can cater to all kind of audiences? Yeah, I think definitely there's always scope for improvement, and मुझे तो लगता है टीवी अपनी पावर समझ ले अगर, जी, इट्स लाइक अ जेंटल जायंट। टीवी की जो पुल है, टीवी की जो पावर है वो जबरदस्त है। एंड टीवी अगर ऐसा हो जाए ना कि हम सबको केटर करें, हालांकि सबको तो केटर करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे अब ऐसा लगता है कि टीवी का वो दौर आ गया है कि नाउ टीवी शुड आल्सो चर्न आउट गुड कंटेंट। अब अच्छे उनको शोज लेकर आने चाहिए, पुराने जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उनको लेकर आना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज हैपनिंग नाउ। आई फील द शिफ्ट। In fact, I am doing a show after 12 years. I'm going to be doing a TV show. Yeah. And that too because it's a limited series. Or it's based on a K-drama. So उसका adaptation है. So it's a beautiful series and something जो पहले TV पे at least नहीं हुआ है. जी. So that was the reason that I'm doing it. And उसके producers भी मेरे half love half arranged वाले producers ही हैं, Pocket Aces. So that was one of the reasons that I trusted them कि वो तो अच्छा ही content बनाएंगे, and the story is so nice. हम लोग तो जब बड़े हो रहे थे तो हमने कितने बड़े बड़े एक्टर्स टीवी पर देखे हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, और अभी मुझे टीवी में ऑनेस्टली मुझे सबकी शक्लें भी सेम लगती हैं, मुझे सबके कपड़े भी सेम लगते हैं, हेयर भी सबका सेम लगता है। तो आई थिंक हाई टाइम टीवी शुड cater to a wider audience। सिर्फ ये नहीं कि यही लोग देखें, कुछ ऐसा भी प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें जो हम लोगों के लिए तो टीवी एक तरह से खत्म ही हो गया है देखना। जी। आई डोंट इवन रिमेम्बर, मैंने लास्ट शायद सिया के राम जब आता था तो एक आध बीच में एपिसोड देख लेती थी अपना। कैरेक्टर थे राइट उसमें, सिया के राम। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, दैट वाज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। आई ऑलवेज फेल्ट कैकई प्लेइंग कैकई वाज नॉट अ जोक। It was huge responsibility on you. Yeah. It was completely. और मेरा पहला माइथो शो था, तो माइथो is very tough, it's a very tough show. But I loved playing Kekai. Yeah. I enjoyed every bit of it. So what I'm trying to say here is कि थोड़ा सा अगर टीवी अच्छा कंटेंट लेकर आए ना, तो actors like us would love to go back to TV, Yeah. would love to do TV, लेकिन आप मुझे कैरेक्टर ऐसा दे दो ना, मैं कहती हूँ चलो ललिता देवी जैसा दे दो। Yes. Yeah. कुछ डिफरेंट दे दो करने के लिए, या मुझे वो फ्रीडम दे दो कि मैं उसको डिफरेंटली करूँ। Yes, definitely. You were also part of तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया, जो कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, where human falling in love with robot. What was your experience working on that movie? Any funny behind the scenes memories? क्या आपका एक्सपीरियंस था? Very nice. I got to work with Dimple ji, Dharam ji, and बहुत अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा मैडॉक के साथ। I did 3 films with Maddock. So wow. So it was a wonderful experience, and कई बार ये भी होता है कि सेट पे आप कुछ सीन्स से हैप्पी नहीं होते हो तो इम्प्रोवाइज करते हो,
So our director was kind enough to let us improvise, and you know, me and Rakesh Bedi, we played भाई बहन बने थे, बबलू एंड बबली. तो वो कैरेक्टर नाम भी मैंने ही रखे थे. मैंने कहा पाजी मैं बबली. तो हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते थे. तो अच्छी थी, फन एक्सपीरियंस, नाइस. तो ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब आता है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के आप अट्रैक्ट होते हो स्क्रिप्ट की, या आप अपना कैरेक्टर पढ़ के अट्रैक्ट होते हो? I'll tell you. क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि मेरा कैरेक्टर कितना सिग्निफिकेंट है, क्या कर क्या रही हूँ एग्जैक्टली. जी जी जी. ओवरऑल फिल्म में क्या हो रहा है, यू नो. तो एंड कैरेक्टर एक्टर्स हैव द एडवांटेज ऑफ, यू नो, अपने आप को फिल्म से अलग करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है हिट या फ्लॉप. बट ये जरूर होती है कि मैं जो कैरेक्टर करूँ वो अच्छा हो और मैं वो अच्छे से करूँ. सो आई से कि हम लोगों की वहीं तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकी तो फिल्म के ऊपर है कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू वर्किंग विद धर्म जी. तो बहुत ही प्यारे इंसान, इतना प्यार करने वाले, इतने, मतलब जिसको कहते हैं ना मैग्नानिमस, एंड ही वाज प्योर हार्ट कंप्लीटली. तो मुझे बहुत प्यार करते थे वो. तो एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू टच हिज फीट एंड पापा जी, तो कहते थे बहुत प्यारी है तू, बहुत आशीर्वाद देते थे मुझे. तो आई हैव दोज मेमोरीज, यू नो. ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका, या बस ये होता गया कि आप फिल्म्स और ओटीटी करने लगे और आप टेलीविजन से हट गए, या ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था? ये कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था, लेकिन ये फिर बाद में होता चला गया, कॉन्शियस बन गया. क्योंकि फिर मुझे ये हुआ कि जब मैंने करणजीत कौर किया, विच वाज द फर्स्ट web series of Z5. Z5 was launched with Karanjit Kaur. And after that, suddenly I started getting only films and web. तो मुझे टीवी के लिए टाइम ही नहीं था, और टीवी नीड्स अ लॉट ऑफ डेज. इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट. और अगर आप टीवी करते हैं तो फिर आप कुछ और नहीं कर पाते. जी. तो फिर कहीं ना कहीं बाद में जाके मेरा कॉन्शियस डिसीजन भी हो गया कि मैं अभी टीवी अगर करूंगी तो आई लूज फिल्म्स. Any particular project that is very close to your heart? ऐसे project जिसको देख के आपको लगता है yeah, this something that I will always cherish for my entire life. If you want, there are three projects like that. One is Karanjit Kaur, which was my and India's first web series actually. I'm not talking about Sacred Games because that was on Netflix. But Karanjit Kaur was first Indian role because Z5 launch भी उसी से हुआ था. And the role was, I can't tell you how tough it was for me. It was such a beautifully written role, and all my, you know, I'm so grateful to my writer Karan Sharma and my director Aditya Dutt, who changed my language completely, language of my body language, my language, because I was coming from TV, and he subtlety क्या होती है, धीरे 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 he changed. Yeah, and he was instrumental in making me understand that I can be a better performer by not being over performing basically. क्योंकि हम सीरियल में जरा 100 ऊपर ही एक्टिंग करते हैं ना. तो he is my web guru, I can say. He changed my language, and then after that, so Karanjit Kaur is really very close to my heart. Second is Siya Ke Ram, again because of the character I got to play and because of the equation I have with Ram. It was beautiful. It was as if he was my own son. So Siya Ke Ram was very tough. And third is Lavya. It's very close to my heart. So these are the three projects which I really cherished. I really had a wonderful time working on them. We'll start with our 90s rapid fire. Favorite 90s Bollywood actor and actress? Favorite Salman Khan. Actress Juhi Chawla. Favorite Bollywood song from the 90s? Choda Hai Hum Wo Galiyan from Machis. Favorite 90s TV show? Tara. And favorite 90s ad or commercial that you remember? Hamara Bajaj. Or any favorite 90s dialogue you still remember? ऐसा कोई movie जिसका dialogue? हर एक में dialogue था, ये लो ये blank check और मेरी बेटी को भूल जाओ. मुझे दे दो blank check. किस में था मैं? हर फिल्म में होता था, मेरी बेटी को भूल जाओ, ये लो ब्लैंक चेक और उसकी जिंदगी से चले जाओ. बाप होता था, हीरो पे ही बोलता रहता था.
one thing you wish you can bring back from the 90s? Good कोई एक content. ऐसी चीज, हाँ? Good content. If you could time travel to the 90s, what would you do first? कोई ऐसा एक काम जो आपको लगता है 90 के दशक में आप वापस जाओ तो आप करोगे जाके Not वापस come से? back. Not come back. Pursue That's my pursue my studies, become a lawyer, or join RADA or something like that. But I never wanted to be a part of this. नहीं मैम, ऐसा नहीं करना था क्योंकि आई थिंक फिर ऑडियंस जो आपके शोज, आपकी फिल्म्स, आपकी प्रोजेक्ट देख देख के बड़े हुए हैं, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे. But thank you so much for joining me today and Thank making you so this much. so special. I hope you continue to entertain and inspire us just like you always have. Thank you so And much for having me. thank you, ma'am.